Good evening, everybody. I am Sania, your host from today's live from All About Skin Wellbeing team. I am sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin healthy with focus on urticaria or hives, which we or our near and dear ones have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin and it sometimes itch intensely, and it may be due to chemicals in certain food, allergy, or to certain medication, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown as well. As per study published in India Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years and incident is higher in older age group. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it and doing self-medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early admission. In today's digital world, it is a boon or blessing that we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria, its types, how we can prevent it, the kind of tests which are required to diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, girls and boys, we have with us today renowned dermatologist of India. He has over 5 years of working experience, Dr. Bhavesh Rajak. Dr. Bhavesh Rajak is known for his exceptional medical expertise and compassionate patient care. He has dedicated his career to diagnosing and treating a wide range of medical conditions while providing personalized healthcare services to his patients. A very warm welcome to Dr. Bhavesh Rajak, and it's a pleasure to have you today, Doctor. Thank you, Sanya, for introducing me. Thank you. Thank you so much, Doctor. And it is a pleasure to have you today. And as we are going to discuss about a very important topic that is urticaria, and as we all know that rainy seasons have already occurred in India, and urticaria and all these infections are very common in rainy season. But first of all, we would like to know that what is urticaria, how it is defined. As we know, urticaria is a common problem. Then how we see this is the case of the urticaria? कैसे आप लोग ये बता सकते हैं कि ये केस अर्टिकेरिया? यदि कोई रैश जो आपके बॉडी में हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इची हो रहा है, तो वो कंसीडर होगा अर्टिकेरिया में. वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज द इरप्शन ऑफ इडिमेटस स्वेलिंग ऑफ द डर्मिस. हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्किन का लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस, तो डर्मिस में जो स्वेलिंग हो रहा है, एपिडर्मिस में जो आपके रैशेस उसके दिख रहे हैं, वो हम अर्टिकेरिया के रूप में जो आम बोलचाल की भाषा में जो चकत्ता होना, दोदरापन होना, उसको हम लोग देखते हैं अपने चमड़े में या अपने स्किन में. ओके डॉक्टर. और डॉक्टर, अगर हम बात करें कि क्या कारण हो सकते हैं आर्टिकेरिया के, किन कारणों की वजह से आर्टिकेरिया होता है, क्या कोई स्पेसिफिक कारण होते हैं और क्या ये अलग अलग सीजन में, जैसे अभी रेनी सीजन है, फिर समर्स होते हैं और कोल्ड सीजन आता है, तो क्या इसके अलग अलग टाइप होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं आर्टिकेरिया के? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप अर्टिकेरिया को एक पर्टिकुलर कारण से डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वजह से अर्टिकेरिया, वेरियस कॉजेज हैं जो कि अर्टिकेरिया कॉज कर रहे हैं. ठीक है, मेनली अर्टिकेरिया को जो डिफाइन किया जाता है वो एक्यूट और क्रॉनिक केस में. एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रॉनिक अर्टिकेरिया मेनली दो डिवीजन है इसका. इसमें कि एक्यूट अर्टिकेरिया जो है वो 6 वीक से पहले जो अर्टिकेरिया ओरिजिन, जो अर्टिकेरिया का ड्यूरेशन है वो ये 6 वीक तक का ही है. 6 वीक के अंदर ही अर्टिकेरिया हो रहा है. 6 वीक तक कहीं फिर पेशेंट यदि कंप्लेन कर रहा है कि नहीं 6 वीक तक ही हमको ये आया है या 6 वीक से पहले ही आया है, बस इतना ही दिन का ड्यूरेशन है, तो वो एक्यूट अर्टिकेरिया. यदि वो 6 वीक के बाद भी परसिस्ट कर रहा है 6 से 8 वीक के बाद, तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया. और ये दोनों चीज तो हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अर्टिकेरिया को, बहुत सारे फूड एलर्जीज हैं जो अर्टिकेरिया कराते हैं, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर हैं जो अर्टिकेरिया कराते हैं, बहुत सारे इन्फेस्टेशन हैं जो अर्टिकेरिया कराते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन. फिर पेट की बीमारी जो आप देख रहे हैं
हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पेट की बीमारी रहती है, जैसे पैरासाइट इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को होते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में, जो हमारे इंडियन सब कंटिनेंट है उसके भाषा में कृमि होना, जाली होना, पेट के अंदर कीड़ा होना, वो जो है उसके कारण से भी अर्टिकेरिया को देखा गया है कि अर्टिकेरिया हो रहा है। कभी कभी किसी को हेपेटाइटिस बी है, इम्यून एक्टिवेशन हो गया, उसके कारण से भी अर्टिकेरिया है। बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि आप देख रहे हैं सीजन चेंज हो रहे हैं, गर्मी से बरसात, फिर बरसात से फिर ठंड, इस दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन फेज है, यूजुअली ट्रांजिशन फेज में जो है अर्टिकेरिया को अधिक देखा गया है। तो यदि ये लंबे दिन तक परसिस्ट कर रहा है, 6 वीक से बाद तक भी परसिस्ट कर रहा है, तो क्रॉनिक केसेस हो रहा है। वही 6 वीक से पहले तक परसिस्ट कर रहा है मात्र, तो वो एक्यूट केसेस हो रहा है। ओके ओके डॉक्टर, एंड जैसे कि आपने बताया 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, और अलग-अलग कारण हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ आर्टिकेरिया, तो सब में अलग-अलग कारण होंगे। दैट मीन्स कि अगर किसी को आर्टिकेरिया है, सो दे हैव टू गो एंड रेफर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो बेहतर बता पाएंगे कि आर्टिकेरिया का हाँ, कारण क्या है। या एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ये बता पाएंगे कि आपके अर्टिकेरिया का कारण क्या हो सकता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कारण है जो अर्टिकेरिया करा रहा है आपके। कहीं आप ऐसे बीमारी का बुलाहट तो नहीं है ये अर्टिकेरिया, जैसे हेपेटाइटिस बी वगैरह है, तो उसमें क्या है कि ये बुलाहट भी हो सकता है। और आपके जो है जो फूड एलर्जेंस हैं, आप ऐसा कौन सा फूड ले रहे हैं, ये भी बता रहा है कि आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर खाने को अवॉइड करें। राइट राइट, और जैसे कि आपने कहा कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं कि क्या फूड एलर्जीज है या क्या पर्टिकुलर चीज फूड इनटेक के कारण आर्टिकेरिया हो रहा है। डॉक्टर, जब हम आर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं, अभी आपने हमें बताया कि एक्यूट एंड क्रॉनिक 2 प्रकार के आर्टिकेरिया होते हैं। अगर हम आर्टिकेरिया की बात करें, तो क्या ये एक एलर्जी है, और क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है बाय टचिंग, और कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि इट्स अ रेड रैश और दिखता है। तो क्या ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति को आर्टिकेरिया है एंड दे आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स और क्लोथ, तो क्या आर्टिकेरिया स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि लोगों के बीच में भावनाएं रहती है, इन जो चमड़े के रोग हैं, अधिकतर लोगों को लगता है कि चमड़े के रोग जो है वो छूने से फैलेंगे, छूने से बढ़ेंगे, ये सब लोगों के मन में भावना है। लेकिन अर्टिकेरिया के केस में ऐसा एकदम ही नहीं होता है। आप लोगों के लिए ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि अर्टिकेरिया ना छूने से फैलता है, ना हाथ लगाने से फैलता है, ना उसके साथ खाना खाने से फैल रहा है। यानी अर्टिकेरिया ऐसे किसी चीजों से नहीं फैल रहा है। बस आपको ये बचाव रखना होगा कि आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उसकी सलाह लें, उसके बारे में समझें कि आखिर आपको किस चीज से एलर्जी है, आपको रैसेस जो आ रहे हैं वो किस चीज से आ रहे हैं, और पर्टिकुलर उस चीज की दवा लें, तो ये अर्टिकेरिया आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं उससे बचा जा सकता है। ये कोई छूने की बीमारी या हाथ लगाने की बीमारी या किसी को एक से दूसरे को फैलने की बीमारी एकदम ही नहीं है। लोगों के बीच में ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी गाँव के परिवेश में, मैं खुद अभी गाँव में कभी कभी जाता हूँ, लोगों के बीच में बातें करता हूँ, सुनता हूँ लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच में ये बहुत अधिक कंसर्न रहता है कि नहीं कहीं ये अर्टिकेरिया जो है, जो हम मुझे चटकते चटकते हो रहे हैं, लाल लाल जो ये हो रहे हैं, वो कहीं छूने से तो नहीं फैलेगा। तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि आप ये सब चीज को नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि गांव के परिवेश में लोगों का बहुत अधिक मानना रहता है। तो लोगों को गांव में एजुकेट करना, और शहर में भी, यहाँ तक कि शहर में भी लोगों के बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह में भी लोगों का, जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों में भी ये कभी कभी गलत अवधारणाएं पैदा हो जाती है। तो हम लोग को उससे बचना है और एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है, तब जाके का अच्छा सा काउंसलिंग, निदान, रोग का उपचार हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर, और जैसा कि आपने बताया कि आर्टिकेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, तो अगर किसी को आर्टिकेरिया है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भी होगा, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने बताया उसके अलग-अलग कारण होते हैं, अलग-अलग कॉजेज़ होते हैं।
डॉक्टर, जब हम आर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन को आर्टिकेरिया है, वो मेडिकल शॉप पे गए, उन्होंने ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ली और उससे उन्हें फायदा हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को रेफर किया कि आप भी ये मेडिसिन खा सकते हैं, आप भी ये क्रीम लगा सकते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कितना हार्मफुल हो सकता है और क्या लोगों को सेल्फ मेडिकेट करना चाहिए आर्टिकेरिया को या नहीं? नहीं, मैं एकदम इसके विपरीत हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन हैं जो कि आपके शरीर को जाने अनजाने में ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकेरिया के ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में भी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत ऐसे मेडिसिन हैं जो कि एरिथमिया करा सकते हैं आर्टिकेरिया के। तो अब आपके डॉक्टर ही आपको अच्छे सलाह दे सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है। आप मेडिकल शॉप में सेल्फ मेडिकेट करके कुछ दिन तक आप राहत कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए। हो सकता है कि आप उससे बड़े चंगुल में भी फंस जाएं कि जैसे एस्टिमाजोल है, उसमें ये सब कभी-कभी जो है आर्टिकेरिया में यूज़ होता है और वो जो है कभी-कभी एरिथमिया करा रहता है, वो एरिथमिया का साइड इफेक्ट है। तो यदि आप उस चीज़ को ले रहे हैं, जाने-अनजाने में ही क्या सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसीलिए आप अच्छी बात, लोगों के लिए ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्फ मेडिकेट आर्टिकेरिया के पर्पस में ना करें। डॉक्टर्स की सलाह लें, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें, ताकि उनका सही उपचार हो पाए, सही डायग्नोसिस बन पाए। कभी-कभी आर्टिकेरिया जो है अलग प्रेजेंटेशन में आपके पास आएगा। बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं, आर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस है, वो बोलेंगे आर्टिकेरिया है, आर्टिकेरिया, लेकिन वो आर्टिकेरिया है नहीं। कभी-कभी इसके बीच को लोग आर्टिकेरिया समझ लेते हैं, तो वो आर्टिकेरिया है नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अ, अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। बाकी जितनी अच्छी सलाह उतनी अच्छा उपचार। बिल्कुल, और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आर्टिकेरिया आपको है, कुछ सिम्पटम है, तो नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उन्हें कंसल्ट करें, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्टिकेरिया को डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीट करवाएँ रेदर देन सेल्फ मेडिकेटिंग, एज़ डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आपने हमें बताया कि 2 टाइप्स के आर्टिकेरिया होते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक एंड एक्यूट। सो क्या एक्यूट और क्रॉनिक के ट्रीटमेंट्स अलग-अलग होते हैं और क्या क्रॉनिक आर्टिकेरिया ज़्यादा हार्मफुल होते हैं देन एक्यूट आर्टिकेरिया? और कितना वक़्त लगता है, अगर किसी ने मेडिकल जर्नी स्टार्ट की है, तो कितना वक़्त लगता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही आर्टिकेरिया को सही होने में? आप आपने जो सवाल किया है, एक्यूट और क्रॉनिक आर्टिकेरिया दोनों ही अपने-अपने कंडीशन में हार्मफुल हैं आपके लिए। एक क्रॉनिक आर्टिकेरिया है कि आपके डे टू डे लाइफ को इतने अधिक अफेक्ट करते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी ओकेजन में जा रहे हैं, आप अचानक से आपको डायबिटीज आ जाएँगे। वो लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, आप उसके कारण सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, उसके कारण आपके लीवर में, आँत में और जगह भी जो जहाँ जहाँ ड्रग का एब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है, वो उसकी साइड इफ़ेक्ट है, सेडेशन होना, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इस चीज़ों से क्रॉनिक अर्टिकेरिया में आपके लिए अच्छी तरह से कभी-कभी कभी-कभी ड्रग इंड्यूस्ड जो अर्टिकेरिया होते हैं, उसमें आपको समय नहीं मिलता है, आपको उस ड्रग को अवॉइड करना रहता है। जो आप कोई-कोई ड्रग हैं ऐसे ऐसे हैं जो कि अर्टिकेरिया करा रहे हैं, जो एक्यूट ऑनसेट में करा रहे हैं अर्टिकेरिया। तो उससे काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वो ड्रग हम ना लें, जो ड्रग अर्टिकेरिया करा रहे हैं। तो इसलिए एक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया अपने-अपने लेवल पे जो है दोनों ही नुकसानदेह हैं, दोनों ही हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं।
ओके, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों ही जैसे कि डॉक्टर ने बताया हमारी लाइफस्टाइल को हम कर सकते हैं, सो आप ज़रूर से ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर कई बार ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके पास भी कई ऐसे सारे लोग आते होंगे कि जब एक बार उन्हें आर्टिकेरिया हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद उन्हें फिर से आर्टिकेरिया हो गया। तो क्या आर्टिकेरिया कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड वेल, या फिर उसे आधे में ही हम कह सकते हैं कि लेफ्ट अनट्रीटेड बीच में ही अगर दवाइयाँ बंद कर दी, तो क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आपने कहा कि आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, एक तो ला सकता है, लेकिन वो उसके सीवियर ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशन बहुत कम में देखे गए हैं। sepsis spondylitis arterial, diabetic arterial, कोई ड्रग तो ले रहा है, तो अचानक से उसके अदर ऑर्गन और अदर लाइफ Okay, okay, doctor. And doctor, is it possible that can COVID cause hives on face? क्या कोविड के पहले कोविड के बाद बहुत सारे केसेस आपने देखे हों जिसमें आर्टिकेरिया या हाइव्स, क्या वो एक रीजन हो सकते हैं फॉर आर्टिकेरिया? आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। ओके, ओके, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या कोविड कॉज कर सकता है हाइव्स ऑन फेस, और क्या कोविड के कारण भी बहुत सारे लोगों में आर्टिकेरिया के केसेस बढ़े हैं? हाँ हाँ, ये आपने ये कोविड जब से हमारे 2000 जब से आया है कोविड हम लोगों के जीवन में जैसा, तो उस समय से मैंने अभी तक देखा है कि आर्टिकेरिया के केस काफी हद तक बढ़े हैं। आर्टिकेरिया के अब शुरुआत से और अब तक के ट्रीटमेंट में जो है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि हर 5 में 3 में एक केस मेरे पास आर्टिकेरिया के आ जा रहे हैं, और वो भी सीवियर आर्टिकेरिया की सीवियरिटी भी बढ़ी है। यहाँ तक कि सीवियरिटी भी बढ़ी है। बहुत सारे जर्नल्स में जो है इस चीज को मेंशन भी किया गया है, इंडियन जर्नल का। तो ये है कि कोविड के कारण आर्टिकेरिया के थोड़े से इफेक्टिवली तो नहीं, लेकिन हाँ केसेस बढ़े हैं। ओके, ओके डॉक्टर। एंड अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें अब के आर्टिकेरिया के, एक्यूट भी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही आर्टिकेरिया के, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं सभी लोगों के लिए? तो बहुत सारे ऑप्शन ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं ये एक्यूट और, क्योंकि एक्यूट जो है वो आपको आप एंटीहिस्टामिन दे के ठीक कर सकते हैं, स्टेरॉइड दे के ठीक कर सकती हैं। बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट आ रहे हैं बाजार में, उनसे देख लीजिए, साइक्लोस्पोरिन है, उनसे ठीक कर सकती हैं। और भी जो है इन दोनों के ट्रीटमेंट में वेरिएशन तो काफी है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप काउस को ट्रीट कीजिए। ऐसा काउस तो नहीं है, कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिससे अर्टिकेरिया हो रहा है। बाकी सेकेंड लेवल पे आता है ड्रग। कोई ड्रग को किस लेवल पे एक बच्चा है, एक बड़ा है, एक बूढ़ा है, उसमें ड्रग कौन सा दिया है, और कौन से बहुत सारे हैं कि सेल्फ मेडिकेट करते करते उस ड्रग से रेसिस्टेंट कर रहे हैं, उस ड्रग से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। उस कंडीशन में भी ट्रीटमेंट लाइन फिर आपका ये चेंज हो जा रहा है कि इस कंडीशन में। लेकिन जनरली हम लोग जो आर्टिकेरिया को ट्रीट कर रहे हैं वो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एंटीहिस्टामिन थर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लीवोसेट्रिजिन, जैसे आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी सर्दी हुआ, खांसी हुआ, तो लीवोसेट्रिजिन खा लेते हैं हम लोग बहुत सारे जो वो लीवोसेट्रिजिन खा लिए, तो वो आर्टिकेरिया में हम लीवोसेट्रिजिन का भी यूज करते हैं। सेट्रिजिन भी है जो एंटीहिस्टामिन का रोल करता है, फेक्सोफेनाडिन है उसको भी यूज कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्सीजिन है उसको भी यूज कर रहे हैं, बिलास्टिन है न्यू ड्रग उसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये वेरियस एंटीहिस्टामिन है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो हम लोग आर्टिकेरिया में यूज कर रहे हैं। बहुत रिकैल्सिट्रेंट है, क्रॉनिक है, तो उसमें हम लोग एएसएसटी भी करते हैं। और बाकी ये सब चीजें हैं, साइक्लोस्पोरिन भी जो अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट में हम लोग दे रहे हैं, वो सब चीजें हैं जो मेडिकेशन के रूप में, ये सब सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आर्टिकेरिया में यूज कर रहे हैं। राइट, तो मतलब ट्रीटमेंट जो है आर्टिकेरिया का वो अवेलेबल है, तो
प्लीज सभी लोग, अगर आपको आर्टिकेरिया के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप जाकर नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेट ना करें, बिकॉज देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि होम रेमेडीज भी लोग अप्लाई करते हैं ऑन आर्टिकेरिया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज जो अवेलेबल हैं। सो होम रेमेडीज कितनी इफेक्टिव है आर्टिकेरिया में, और क्या लोगों को होम रेमेडीज का यूज करना चाहिए अगर उन्हें आर्टिकेरिया है या नहीं? देखिए, होम रेमेडीज ऐसे चीजें हैं ना जो कि आप रोज घर में वो घर में चीजें हैं, घर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो वो घर की चीजें, बहुत जो घरेलू चीजें हैं जो हम लोग बोलते हैं, तो उसको यूज करने में कोई ऐसा नहीं कि हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, आर्टिकेरिया में यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिसर्च और होना चाहिए, जो हमारे इंडियन मेडिसिन हैं, इंडियन मेडिसिन में और रिसर्च होने चाहिए, तब जाके जो हम लोग आर्टिकेरिया की जो रोजमर्रा की जिंदगी घरेलू चीजों में उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे लोग जो है आर्टिकेरिया में जो है जो आम तौर की बात है, नहीं ये फूड नहीं खाना है, ये फूड नहीं खाना है, ये चीज नहीं है लेना है, या फिर हम आदि लेंगे तो ठीक हो जाएगा, या हल्दी लेंगे तो हल्दी दूध पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि कारण तो है, इम्प्रूवमेंट दिखता है, लेकिन ये रिसर्च नहीं है। बहुत सारे हम लोगों के पास रिसर्च नहीं है। बहुत सारे लोग मेंथोल लेते हैं, कभी कभी हेल्प यूकेलिप्टस ऑयल है जो कि अर्टिकेरिया को कम करते हैं, एलर्जिक वाले को कंडीशन को कम करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, पर रिसर्च ना होने के कारण हम लोग किसी को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं अब तक कि ये अर्टिकेरिया में हेल्पफुल। ओके, सो होम रेमेडीज भी है, बट इट्स बेटर कि आप एक स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्ट करेंगे तो वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या आर्टिकेरिया कैसे आपका ट्रीट किया जा सकता है, इट इज क्रॉनिक और एक्यूट आर्टिकेरिया। डॉक्टर, व्हाट प्रिकॉशंस इन जनरल, सभी लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आर्टिकेरिया से बचने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकेरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं उसको नोटिस करें कि आपको कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर तो नहीं है जो कि जिसके कारण से आपका आर्टिकेरिया या व्हील या हाइट जो है बढ़ रहा है। कि कभी ना कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग उस फैक्टर को नहीं जान पाते हैं। डे टू डे लाइफ में जो है सुबह से उठना, उठने के बीच में ब्रश करना, फिर जो अपना रोजमर्रा के काम है वो करना, तो उस काम के दौरान कौन ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते, अर्टिकेरिया करवा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो कि ट्रिगरिंग कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो उस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके जो है एक अर्टिकेरिया का एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ हम पहुंचेंगे। उस जो प्रिकॉशन, जो सावधानियां जो है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन है कि जब भी अर्टिकेरिया तो कुछ जो हम लोग उसको बोलते हैं कि आप ध्यान दीजिए, अपने मरीजों को बोलते हैं कि आप ऐसे चीजों का ध्यान दीजिए जिससे आपको अर्टिकेरिया इंड्यूस हो रहा है, अर्टिकेरिया बढ़ रहा है। तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि आप जो है अभी हाई प्रोटीन रिच डाइट ना लें, जैसे कि अंडे दाल हो गया, अंडा हो गया, फिर मीट मछली, फिशेस वगैरह। तो ऐसे स्मोक फिशेस वगैरह, जो वो सब चीजों को अभी हम अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट के दौरान वो अवॉइड करने का प्रयास करवाते हैं पेशेंट मरीजों से, ताकि वो उस चीजों को सावधानी पूर्वक यूज करें। क्योंकि जैसा कि आप हम लोग जान ही रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो फूड जो है, फूड एलर्जन जो है वो अर्टिकेरिया करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों का उनको रोजमर्रा की जिंदगी में बातें बता के सावधानियां बरतने का हम लोगों को ओके, प्रयास किया तो जा रहा ये सभी प्रिकॉशंस आप जरूर लें। और डॉक्टर, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है इंडिया में, एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन फॉर पर्टिकुलरली रेनी सीजन, के रेनी सीजन में कौन सी बातों का ध्यान सभी लोग रखें? हाँ, मैं इसमें रेनी सीजन में क्योंकि ये अभी ट्रांजिशन पे चल रहा है, ये रेनी सीजन जो आ रहा है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। इंसेक्ट्स वगैरह नए नए बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे नए अलग अलग तरह के जो है वातावरण में
एलर्जेंस आ जाते हैं, बहुत सारे चीजों को ग्रो करने का मौका मिलता है, नमी हमारे कपड़े में बची रह जाती है, वो इंड्यूस कराते हैं, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा रहे हैं। इंसेक्ट है, इंसेक्ट यदि आपको यदि किसी को काट रहा है तो वो क्या, वो भी कॉजेज है अर्टिकेरिया का। तो है कि आप इंसेक्ट से बचने के इंसेक्ट रेपेलेंट यूज करें अपने शरीर में, जो नमी वाले कपड़े हैं उसको अच्छे से सुखा के प्रेस करके तब पहने। तो ये सब चीजों की सावधानियां हैं, नॉर्मल चीजें हैं जो कि रेनी सीजन में हम लोग को काफी अधिक प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, तब जाके अर्टिकेरिया में जो इंसेक्ट वाले हैं या अदर इम्यून रिस्पॉन्स जो रेनी सीजन में जाने अनजाने में ही हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, वो उनसे हम लोग बच सकते हैं। ओके, सो रेनी सीजन में इन सभी बातों का आप ध्यान रखें ताकि आर्टिकेरिया से आप अपने आप को बचा सके। डॉक्टर, यहाँ पर हमारे एक व्यूअर हैं, उनका एक सवाल है। आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्टिकेरिया एंड हैव ब्राउन पैचेस ऑन माय स्किन, व्हाट शुड आई डू? Definitely, I suggest go to the nearest dermatologist and not do self-medicate uh, and some precautions, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिकॉशंस लेने हैं अभी उनको, कि फूड्स का ध्यान रखना है, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके उठने से सोने तक की अवधि में आप जो जो काम कर रही हैं जिस कारण से आपको ये हो रहा है, उस चीजों का ध्यान रखना है। आप कोई फिजिकल स्टिमुलस से तो हमेशा परेशान नहीं हो रही हैं, जैसे कि आप कोई इमोशनल स्ट्रेस में तो नहीं है, आप कभी कोई ऐसी चीजें जो है जो आपको पसीने वगैरह आ रहे हैं उसके कारण से तो नहीं आ रही। ये डे टू डे लाइफ में आपके उठने से लेके, सुबह उठने से लेके आपके रात में सोने तक के बीच में जो जो आप चीजें कर रही हैं, उन सभी चीजों का ध्यान रखना है। उन सभी चीजों में तब जाके आप जो रिकरेंट वाले हैं उस एपिसोड को इस बीच में जो है रोक सकते हैं। ओके, तो आप अपने डेली रूटीन को थोड़ा-सा नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, और क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, ये ध्यान रखें, और आपको सिम्पटम्स हैं, तो गो विज़िट अ नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज़ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि आप को आर्टिकेरिया है। एंड डॉक्टर, क्या, जैसे कि आपने स्ट्रेस बोला, तो क्या स्ट्रेस से आर्टिकेरिया होता है और स्ट्रेस आर्टिकेरिया कुछ अलग प्रकार से दिखता है? नहीं, ये आपको नहीं, स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी आपको स्ट्रेस होगा तो बहुत सारे जो है जाने अनजाने में इन्फ्लेमेटरी मेरिट्स, इम्यून रिस्पॉन्स हमारे शरीर में ट्रिगर करते हैं। ये ट्रिगर करने के बाद क्या होता है कि कहीं ने आप ना चाहते हुए भी स्ट्रेस, आप अर्टिकेरिया को बुलावा दे रहे हैं, अर्टिकेरिया को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स ही है जो कि अर्टिकेरिया के रिस्पॉन्सिबल है। और स्ट्रेस जो है बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बनाता है हमारे शरीर, फ्री रेडिकल्स को। तो क्या ये फ्री रेडिकल्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है फिर हमारे चमड़े में, स्किन में अर्टिकेरिया के रूप में दिखते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में स्ट्रेस को एकदम रिलीज करें, कम करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। तो ये आपका जो अर्टिकेरिया का प्रोसीजर, अर्टिकेरिया का डे टू डे, मैंने जो शुरुआत में ही बोला कि आप शुरुआत से अंत तक में आप हर एक चीज को नोटिस करें, अपने स्ट्रेस लेवल तक को भी नोटिस करें, तब आप इससे अच्छे तरीके से बच सकते हैं। राइट, तो अपने स्ट्रेस से, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस आप आर्टिकेरिया को निमंत्रण दे रहे हैं, सो स्ट्रेस का कृपया ध्यान रखें, और सभी प्रिकॉशंस जो डॉक्टर ने बताए वो जरूर से आप लें, बिकॉज रेनी सीजन हैव ऑलरेडी हिट आवर कंट्री, सो आप लोग कृपया अपना ध्यान रखें। डॉक्टर, कुछ एडवाइस आप सभी लोग जो आज यहाँ पर आज के लाइव देख रहे हैं, कुछ एडवाइस आप अपनी तरफ से सभी को देना चाहेंगे? मैं अपने को एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अर्टिकेरिया को हल्के में ना लें। ये कभी कभी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। आप अपने अर्टिकेरिया में अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन में आप उस ड्रग के प्रति एडिक्ट हो जाएंगे, और दवा की डोजेज जो है, दवा की ड्यूरेशन वो आप एकदम, जो डॉक्टर्स आपके डर्मेटोलॉजिस्ट सलाह दे रहे हैं उसको पूरी तरह फॉलो करें। तो फर्स्ट एंड लास्ट, माय बेस्ट सजेशन इज दैट कि आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट
कंसल्ट करें और उसको उनके हिसाब से उन पे छोड़ दें और उनकी बातों को अच्छी तरह फॉलो करें। बिल्कुल, सो आप कंसल्ट करें अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से और उनकी बातों को फॉलो करें। ये एडवाइस आज हमें डॉक्टर ने दी है। एंड इफ यू हैव एनी सिम्पटम्स रिलेटेड टू आर्टिकेरिया, गो रेफर टू अ नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर, आज हमने डिस्कस किया आर्टिकेरिया के बारे में, द टाइप्स, द प्रिकॉशन, द ट्रीटमेंट। बिफोर वी एंड दिस अमेजिंग लाइव सेशन, एनी टेक अवे मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस लाइव? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अर्टिकेरिया को हल्के में ना लें। अर्टिकेरिया को हल्के में ना लें, सेल्फ मेडिकेट नहीं करें। अपने लाइफ को, डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी को इस अर्टिकेरिया से दूर रखें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें, सही सलाह लें। अर्टिकेरिया कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इतना है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें। आप अपने जिंदगी को आसानी से, लाइफ को अच्छे तरीके से, डे टू डे लाइफ को विदाउट अपने वर्क को हैम्पर किए हुए काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि to the dermatologist and treat your articaria problem. Yes, so do not self-medicate your articaria। और जैसे कि आज हमने एक बात सीखी कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ को नोटिस करना है कि क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है या क्या चीज आपके आर्टिकेरिया को और बढ़ा रही है। एंड इफ यू हैव सिम्पटम्स ऑफ आर्टिकेरिया, डू रिफर टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट। डोंट सेल्फ मेडिकेट बिकॉज इट कैन वर्सन योर आर्टिकेरिया एंड इट्स सिम्पटम्स। एंड यस डॉक्टर, यस। एक चीज होनी चाहिए, ये चीज होना हर एक लोगों को, हम लोगों को, जितने भी हम लोग व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए एक ही चीज मैं सलाह दूंगा कि आप अपने डे टू डे लाइफ को नोटिस कीजिए। एक तो आप अर्टिकेरिया से बच जाइएगा और दूसरे जो आपके प्रॉब्लम है उनसे भी बच जाइएगा। यदि आप अपने डे टू डे लाइफ को अर्ली टू बेड और गुड टू बेड वाले ड्यूरेशन में आपने अपनी लाइफ को नोटिस किया तो आप स्ट्रेस से बच जाइएगा, अपने अर्टिकेरिया से बच जाइएगा, अपने लाइफ को इजी वे में हेल्दी लाइफ को जी पाइएगा और लोगों से परेशानी जो है वो भी दूर जाएगा। Right. So early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. That is a very well-vetted quote जो बहुत टाइम से चला रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। एंड जैसे डॉक्टर ने कहा, if you have any symptom, go refer to your nearby dermatologist. Don't self-medicate articaria. And thank you so much, Dr. Bhavesh Rajak, for your valuable time. And it has been and doctor, it has been a very informative session for all viewers. Thank you all the viewers. And I am sure that they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones. And now they will not self-medicate because, as you have already told, that self-medication can definitely worsen its symptoms. So do not self-medicate. And thank you so much for your valuable time. We look more sessions with you in the coming time as well. Thank you. Thank you so much, doctor, and thank you so much, viewers, for your excellent participation in today's session. To get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our Facebook page that is all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and good day to all.